اب میں آپ حضرات کے بیچ میں حائل نہ ہوتے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی صدر محترم اور اس جلسے کے خصوصی مہمان مفتی عبدالقیوم صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کے مناسبت بیان فرمائیں گے، تقریر فرمائیں گے اور آپ لوگوں کے دل کے اندر ایک ولولہ اور جوش ڈال دیں گے انشاءاللہ سبحانہ و تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی سمیر صاحب، مفتی اسماعیل صاحب، دوسرے علماء کرام اور نوجوان معزز ساتھیوں اور نہایت ہی واجب الاحترام بہنیں اور مائیں، اس وقت آپ نے بچوں کا اور بڑوں کا پروگرام سنا۔ پروگرام نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ سیکھنے کی کوئی لمٹ، کوئی عمر نہیں ہے، ہر عمر کا آدمی سیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اور قرآن و حدیث اور سیرت ہم پڑھیں تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑی عمر کے لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے سیکھ کر بتایا ہے۔ سیرت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعات ملتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ ظاہر ہے جو بڑی عمر میں ایمان لائے تھے، اور ان کی اپنی زبان ہی عربی تھی، ان کی اپنی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن کو پڑھنے کا اور سیکھنے کا اہتمام کیا۔ اور کتنا اہتمام کیا، ایک ایک سورت کئی برسوں میں سیکھی، سورہ بقرہ برسوں میں سیکھی۔ تو دو چیزیں، ایک تو اپنی زبان ہوتے ہوئے انہوں نے قرآن کو سیکھنے کا اہتمام کیا اور بڑی عمر میں اہتمام کیا۔ اسی طرح بخاری شریف وغیرہ کے اندر بھی ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس قرآن کو مہارت کے ساتھ روانگی سے پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا جو حشر اور شمار فرمائیں گے وہ مقربین اور لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ اور جو آدمی مہارت سے نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ڈبل اجر ہے، دگنا اجر ہے۔ ایک تو قرآن کے سیکھنے کا اہتمام، قرآن سے محبت عظمت ظاہر ہے تبھی سیکھ رہا ہے، اور دوسرا جو مشقت اس کو ہو رہی ہے اس پر بھی ایک اجر ظاہر ہے۔ اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ قرآن بڑی عمر میں بھی سیکھنے کی چیز ہے، اٹکنا اور پڑھنے میں مشقت کا ہونا ظاہر ہے بڑی عمر میں ہوگا، بچپنے کے اندر اتنی مشقت اور اتنا جہد نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال تو قرآن کے سیکھنے کی، حدیث کے سیکھنے کی، علم کو حاصل کرنے کی کوئی مقرر، کوئی لمٹ، کوئی حد نہیں ہے کہ اتنے عمر کے بعد اب نہیں سیکھ سکتے۔ الحمدللہ آپ نے سیکھ کر بتلایا، پڑھ کر بتلایا۔ ایڈوکیٹ نعیم صاحب میرے اچھے ساتھی ہیں، پڑھ کر سنایا اور ماشاءاللہ بالکل صحت کے ساتھ، روانی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ۔ اسی طرح ہمارے ایک دوسرے بھائی، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، آصف بھائی، الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا اور اعلیٰ نمبر سے، اول نمبر سے کامیاب بھی ہوئے۔ بس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ سیکھنے کی کتاب ہے۔ میں ایک لطیفہ آپ کے سامنے کہوں۔ دیکھیے، مودی 1 کے اندر 2014 میں مودی صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ ہر سال 2 کروڑ لوگوں کو روزگار دے گی۔ آپ لوگوں کو شاید ہے، میں تھوڑا سا سیاست اور ان چیزوں کے اوپر بھی نگاہ رکھتا ہوں، اس لیے اس سے بعد میں شروع کر رہا ہوں اور اہمیت قرآن ہی کی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کیا وعدہ کیا تھا کہ ہر سال 2 کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے۔ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی، ایک تو خوشی اور دوسرا گنتی میں لگ گیا کہ ہر سال 2 کروڑ کو روزگار، تو ہمارے پورے ملک کی جو آبادی ہے، پاپولیشن، وہ کتنا ہے؟ 140 کروڑ ہے۔ 140 کروڑ میں سے 30 کروڑ بڈھے سمجھو، 30 کروڑ بچے سمجھو، 10 کروڑ اپاہج سمجھو، 70 کروڑ تو ایسے ہی نکل گئے، رہ گئے کتنے؟ 70 کروڑ رہ گئے۔ تو آنے والے 30-35 سال میں تو پورا ملک سرکاری نوکری والا ہی ہوگا۔
गिनती समझे आप मेरे? मैं रात भर ये गिनती के अंदर टेंशन में रखे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के ताल्लुक से हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं किताबों में, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले जब आएंगे तो एक दौर ऐसा भी आएगा, अल्लाह ताला इतनी फरावानी, इतनी खुशहाली, इतनी मालदारी दे देंगे, कोई ज़कात लेने वाला ही नहीं रहेगा। तो हजरत ईसा के दौर जैसा हो जाएगा 30-35 साल के बाद, कि सारे ही सरकारी नौकर। वादा किया था ना कि हर साल 2 करोड़ को, लेकिन हुआ क्या? उससे उल्टा हुआ। बजाय इसके कि हर साल 2 करोड़ को नौकरी देते, हर साल नौकरियां कम होती जा रही, छीनी जा रही। जो ग्रेजुएशन वाले हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको भी क्या कहा जा रहा है? भजिए बेचो, पकौड़े बेचो, ये भी बहुत बड़ा एक बिजनेस है, ये भी नौकरी है। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि नौकरियां खत्म हो रही हैं, जॉब खत्म हो रहे हैं, स्कोप खत्म हो रहे हैं। आपके सामने पढ़ने के बाद आदमी ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद नौकरियां नहीं मिल रही है। कोई वादा भी उस पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मॉडर्न एजुकेशन की अहमियत जो लोगों के दिलो दिमाग में वो कम हुई। लोगों ने बंद कर दिया स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना, डिग्री हासिल करना बंद कर दिया कि चलो अब तो नौकरियां नहीं है, स्कोप नहीं है, जॉब नहीं है। उसकी जो अहमियत लोगों के दिलो दिमाग में बैठी हुई है, उसमें कोई कमी नहीं आई। बल्कि मुसलमानों के अंदर भी एजुकेशन ग्रोथ बढ़ा है पिछले कुछ सालों से। और इतना एजुकेशन ग्रोथ बढ़ा, हमारे बच्चे एक ज़माने में जहालत का ताना दिया जा रहा था दुनियादारी के एतबार से, मॉडर्न एजुकेशन के एतबार। पिछले कई सालों में इतनी मंजिलें सर की मुसलमान बच्चों ने कि उसको एजुकेशन जिहाद कह दिया। मैं बात ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जितनी अहमियत और जितनी वेटेज, जितना एहतमाम दुनियावी उलूम को सीखने का हो रहा है, किया जा रहा है, इस पर कोई फजीलत, कोई बशारत, कोई वादा, कोई इज्जत, कोई नुसरत कुछ नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं सीखना चाहिए, वो भी हमारी अपनी ज़रूरत है। जितनी अहमियत और ज़रूरत आज हमें अच्छे उलमा की हैं, अच्छे वकला की हैं, अच्छे उलमा की हैं, अच्छे मुफ्तियान की हैं, अच्छे मुकर्रिरीन वाइज़िन की, इतनी अच्छे वकीलों की भी हैं, अच्छे डॉक्टरों की भी हैं, अच्छे इंजीनियरों की भी है, अच्छे ताजिरों की भी हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया में इल्म नहीं सीखना चाहिए, जॉब नहीं करना चाहिए, तिजारत नहीं, बेशक उसकी भी अहमियत और ज़रूरत है। उसके लिए हमको मोदी के वादों की ज़रूरत नहीं है कि वो वादे करेंगे तभी उसकी, हमारे यहाँ तो हम इसकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि आज हमारी कौम को इन चीज़ों की भी ज़रूरत है। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, जितनी अहमियत इन उलूम को दी जा रही है, दुनियावी उलूम को, दुनियावी तालीम को, मॉडर्न एजुकेशन को, असरी तालीम को, क्या इतनी अहमियत हमारे यहाँ कुरान और हदीस की है? जितना सीखने का, सिखाने का, इसको हासिल करने का जितना एहतमाम दुनियावी उलूम के लिए किया जाता है, जितनी मशक्क़तें, मेहनतें, कोशिशें की जाती है, आदमी दर दर गिरता है, मेहनत पर मेहनत, कोशिश पर कोशिश, डिग्री पर डिग्री, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ इंटरव्यू, वहाँ इंटरव्यू, यहाँ जॉब के लिए गए, वहाँ जॉब के लिए गए। जितनी अहमियत इन दुनियावी उलूम के लिए है हमारे दिलो दिमाग के अंदर, और जितना एहतमाम और कोशिश की जाती है, इसका 10% भी शायद हमारे दिलों के अंदर दीनी उलूम के लिए नहीं। जबकि यहाँ वादे है कुरान के सीखने पर, हदीस के सीखने पर, सुन्नत के सीखने पर, सीरत के सीखने पर, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर, अल्लाह और उसके रसूल को पढ़ने पर, अल्लाह और उसके रसूल के उलूम को हासिल करने पर, सीखने पर वादे हैं, बशारतें हैं, फजीलतें हैं, वादे हैं, इज्जतें हैं, बुलंदियाँ हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मैंने जो हदीस पढ़ी, अल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबी अक़वामा वयदउ इल आख़रीन, यहाँ वादे हैं कि अल्लाह ताला इस किताब की बरकत से कौमों को इज्जत अता फरमाते हैं। इस किताब कुरान की बरकत से, कुरान को आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझ रहे हैं, जिंदगी में उतार रहे हैं, कुरान ही को आप हदफ और नमूना बना रहे हैं,
सीरत को, सुन्नत को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप हदफ और नमूना बना रहे हैं, आपको अपने अंदर उतार रहे हैं, तो यहाँ तो वादे हैं नुसरत के, इज्जत के। और हमने कहीं नहीं पढ़ा कि सहाबाई किराम कुरान और सुन्नत के होते हुए, हदीस के होते हुए नाकाम हुए हों। वहाँ तो अल्लाह ने इज्जत दी है। हदीसों को आप परखना, और अल्लाह के रसूल ने जिस हदीस में जो बयान फरमाया, इन्नल्लाह ताला यरफउ बिहदल किताबी अक़वामा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कौमों को इस किताब की बरकत से इज्जत अता फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वयदउ बिहिल आखरीन, लेकिन बहुत सारे बदनसीब ऐसे भी हैं कि इस किताब के होते हुए, कुरान के होते हुए वो नाकाम भी हो जाते हैं, जलील भी हो जाते हैं। हदीस को समझना है कितनी सच्ची हदीस है। तो इस हदीस के जो रावी हैं सैयदना हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी ज़िंदगी इसका हदीस का अमली तफसीर है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मशहूर मक़ूला दावत और तबलीग वाले भी सुनाते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, नहनु कुन्ना अज़ल्लन्नास फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, कि हम ज़लील लोग थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस इस्लाम की बरकत से, कुरान की बरकत से, हदीस, इस्लाम क्या है? कुरान है, हदीस है। कुरान और हदीस को छोड़कर इस्लाम का तस्वुर ही नहीं हो सकता। अल्लाह और रसूल को छोड़कर, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर इस्लाम का, दीन का तस्वुर ही नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई। और सहाबा किराम की जिंदगी अपनी जगह है, हदीस को समझना है, सिर्फ सैयदना फारूक आज़म की जिंदगी को समझ ले तो हमारे लिए अमली नमूना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी इज्जत अता फरमाई, कितनी बुलंदी अता फरमाई। जिस उमर को अपना मामा और रिश्तेदार जहालत की और सख्त दिली के ऊपर तान तशनी करते थे, गंवार आदमी है, जाहिल आदमी है, ऊँट चराना नहीं आ रहा है, जिसको जहालत के ऊपर, सख्त दिली के ऊपर तान तशनी होती थी, उस उमर को अल्लाह ने इस कुरान की बरकत से क्या मकाम दिया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ने उमर को इतना नवाजा, कुरान पाक की तकरीबन 17 आयतें ऐसी हैं जो उमर ने अल्लाह के रसूल को मशवरा दिया, अल्लाह को मशवरा इतना पसंद आया, उसको आयत बना दिया। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, हज़रत उमर के मकाम को बयान फरमाते हुए, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। कितनी बड़ी इज्जत कुरान की बरकत से, सुन्नतों की बरकत से, सीरत की बरकत से, सुन्नतों की बरकत से। दोस्तों, बस मैं बहुत लंबी बात न करते हुए ये बात अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे जो हालात हैं, जो परेशानियाँ हैं, आज जो जुल्म सितम का हम शिकार हैं, जो जिल्लत और रुसवाई का हम शिकार हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। बड़ी वजह ये है कि कुरान और सुन्नत से रिश्ता और निस्बत हमारी कमजोर हो गई है। पाकिस्तान के एक बड़े मुफ्ती हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातहू, उन्होंने एक अजीब बड़ा दर्दनाक वाक़या लिखा है। कहते हैं कि एक मरतबा मेरा इराक का सफ़र हुआ, जहाँ दीदा आदमी है, दुनिया घूमे हुए आदमी है, पूरी दुनिया का सफ़र किया है, और किताबें भी, अपने असफार के ऊपर किताबें भी लिखी, उलमा जानते हैं। एक किताब में अपने इराक के सफ़र का जिक्र किया है कि एक मरतबा मेरा इराक जाना हुआ। किताबों में पढ़ा था इराक को, बड़ी बड़ी किताबें, यहाँ अहादीस की तफसीरें यहाँ इराक में लिखी गई, बड़ी बड़ी अहादीस की किताबें वहाँ लिखी गई, कुरान और सुन्नत वहाँ पर लिखा गया। और बड़ी बात यह है कि अरबों की सरजमीन, अंबिया अलैहिस्सलाम की औलादें, उनकी नस्लें वहाँ बस रही हैं, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और बड़े बड़े औलिया किराम की औलाद और नस्लें वहाँ बस रही हैं। कुरान से जिनका रिश्ता है, करीबी ताल्लुक जिनका रहा है, हदीस से और सुन्नतों से जिनका करीबी ताल्लुक रहा है, सीरत से जिनका करीबी ताल्लुक रहा है, कुरान और हदीस के सबसे पहले मुखातब जो लोग रहे, अरब लोग कुरान और हदीस के सबसे पहले मुखातब, कुरान ने और हदीस ने सबसे पहले किनको एड्रेस किया, किनको मुखातब किया, संबोधित किया? इन अरब लोगों को। और अरबों के बाद भी हम तक ये बातें आई।
कहते हैं मैंने वहाँ की अजमतों के ताल्लुक से वहाँ को कुरान की तफसीरें हैं, वहाँ हादिस हैं, वहाँ सीरत हैं, वहाँ सुन्नत हैं, वहाँ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की नस्लें हैं, सहाबा के बच्चे औलादें हैं, वहाँ अंबिया और सलाहा की औलादें हैं। बड़ी अजमत और अकीदत के साथ कि किसी दौर में शेख जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े अकाबिर जिस सरजमीन पर रहे हैं उनके बड़ी बड़ी खानकाएँ, उनके बड़ी बड़ी इबादत गाहें हैं, उनके बड़े बड़े मदारिस जहाँ पर हुआ करते थे। मैं एक अकीदत, अजमत और मोहब्बत के साथ इराक गया, बगदाद जाना हुआ। बगदाद जाने के बाद देखा कि बड़ी बड़ी कुल्लियात, कॉलेजें तो बहुत ज़्यादा देखी। अरबों ने किसी ज़माने में जो मदारिस हुआ करते थे, जहाँ क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद हुआ करती थी, जहाँ कुरान पढ़ा और सीखा जाता था, जहाँ हदीस पढ़ी और सीखी जाती थी, जहाँ कुरान की तफसीर, जहाँ अहादीस के ऊपर कलाम हुआ करता था, वो लोग जिनके अक़वाल कुरान की तफसीर बना करते थे। उलमा मेरे बड़े बेटे हैं, उम्र में शायद मेरे से कम हो, लेकिन इल्म अमल में तक़वा में मेरे बड़े हैं, इनके उलूम भी ताज़ा है, मुझसे बेहतर जानते हैं। मदारिस के अंदर जहाँ कुरान और हदीस पढ़ाई जाती है, कसरत से कूफियों ने ये कहा, बसरियों ने ये कहा, फुला ने ये कहा, कूफा बसरा वहाँ के शहर है, वहाँ के रहने वाले जिस तरह उन्होंने कुरान को समझा उसको तफसीर कहा गया। कहाँ ज़बर आएगा, कहाँ पेश आएगा, कहाँ जज्मा आएगा, किताबों में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। क़ालल कूफ़ियून कदा, कूफ़ी लोग यूँ कह रहे हैं, क़ालल बसरीयून कदा। इस हदीस के मामले में, इस आयत के मामले में बसरियों का कहना ये है, यानी कौन लोग कि जिनकी ज़बान को अल्लाह ने इतनी अहमियत दी कि उनकी ज़बान में कुरान उतारा, अलग अलग तरीके से पढ़ते थे, अलग अलग तरीके से उतारा गया। जिन्होंने कुरान को जिस तरह समझा, ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, नुक्ता हो, जिन्होंने कुरान की जो तफसीर समझी उसको तफसीर बनाया। कितनी अहमियत इनके अल्लाह के यहाँ इन अरबों की होगी। कहते हैं मैं उस अज़मत और अहमियत को देखते हुए बगदाद में मदारिस तलाश कर रहा हूँ। पुराने नहज का कोई ऐसा मदरसा मिल जाए जहाँ कुरान सिखाया जा रहा हो, जहाँ हदीस पढ़ाई जा रही हो। बहुत तलाश के बाद कॉलेजें तो बहुत मिली, कुल्लियात तो बहुत मिली, कुल्लियात यानी कॉलेज अरबी ज़बान के अंदर, लेकिन कोई मदरसा मुझे नज़र नहीं आ रहा था। कहते बहुत तलाश बिसियार के बाद एक साहब ने मुझे रहबरी की कि फ़लाँ मस्जिद के अंदर चले जाओ, वहाँ मस्जिद में एक छोटा सा हुजरा है, हुजरे में एक अरब इमाम साहब हैं, वो कुरान सिखाते हैं। तो बहुत तलाश के बाद, जुस्तजू के बाद मैं उस मस्जिद तक पहुँचा। नमाज के बाद देखा वाकई में एक छोटा सा हुजरा है। मैं हुजरे में गया, एक अरब, उम्र रसीदा अरब बैठे हुए हैं और उनके सामने कुछ बच्चे हैं, कुछ नौजवान बैठे हुए हैं। ये उन्हें कुरान पढ़ा रहे हैं, दीन पढ़ा रहे हैं, हदीसें पढ़ा रहे हैं। जब वो अपने दर्स से फारिग हो गए, मैंने जाकर मुसाफा किया, मुआनका किया और तारुफ हुआ, पहचान हुई कौन है, कहाँ से आए। जब मैंने बतलाया कि मैं पाकिस्तान का हूँ, फला मुल्क से आया हूँ, वो उठकर मुझे उन्होंने गले लगा लिया और फिर दहाड़े मार कर रोने लगे। बहुत देर रोने के बाद जब इफाका हुआ, बातचीत के लायक हुए, तो कहा तुम एशिया वाले, ये जो पढ़ाने का जो तरीक़ा है मदारिस में, मकातिब में, बच्चों को और बड़ों को पढ़ाने का जो तरीक़ा, इसकी कदर कर लो। अरबों की हमारी निस्बत और हमारा रिश्ता कुरान से कमज़ोर हुआ तो यह हालात है। मुल्कों के मुल्क तबाह हो गए। आपने देखा इराक ख़त्म होकर रह गया, खंडरात में तब्दील हो गया। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी कुछ साल पहलों की बात कर रहा हूँ। वो रोते हुए कहने लगे कि आपके यहाँ ये कुरान के सीखने और सिखाने का जो निज़ाम है, मकातिब की शक्ल में, मदारिस की शक्ल में, जामियात की शक्ल में, बड़े बड़े मदरसों और जामियों की शक्ल में, ये जो निज़ाम आपके यहाँ कुरान और सुन्नत को सिखाने का जो निज़ाम है, उसकी कदर कर लो। कुरान महफूज रहेगा, आबाद रहेगा, तो आपकी बस्तियाँ महफूज और आबाद रहेगी। और कुरान अगर आपकी ज़िंदगियों से निकल गया और वीरान हो गया, तो ये समझिए आपकी बस्तियाँ वीरान हो जाएगी। इसीलिए एक बहुत लतीफ़ इशारा मुझे आज रास्ते में समझ में आ रहा, मैं सोच रहा था मैं क्या बात करूं।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बड़ा लतीफ़ इशारा फरमाया कि ऐसा पेट, ऐसा शख्स के जिसके पेट में, जिसके दिल में कुरान का ज़रा बराबर भी हिस्सा ना हो तो वीरान घर की तरह है ना। हदीस है, सही हदीस है। इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी ज़ौफ़ी शैउन मिनल कुरान कल बैतिल ख़रीब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि ऐसा आदमी कि जिसके पेट में, जिसके दिल में कुरान का कोई हिस्सा नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं आता है, तो वीरान घर की तरह है। क्या इशारा है कि कुरान है तो आबादी है और कुरान नहीं है तो वीरानी है। कुरान बाकी रहेगा, कुरान के सीखने और सीखने का निज़ाम रहेगा तो आपकी बस्ती, आपके मोहल्ले, आपके दिल, आपकी औलाद, आपकी नस्लें आबाद रहेगी। और खुदा न खास्ता अगर कुरान के सीखने सिखाने की मेहनत नहीं हुई, एहतमाम नहीं हुआ, कुरान ज़िंदगियों से निकल गया तो फिर आप भी महफूज नहीं, आपकी नस्लें, आपकी औलाद, आपकी बस्तियाँ, आपके मोहल्ले, आपके मकान, आपके शहर, सब कुछ वीरान हो जाएगा। और चीज़ देख रहे हैं। और एक चीज समझ में आ रही, देखिए क़यामत से पहले, क़ुर्ब क़यामत में जो बड़ी अलामतें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है क़यामत की, उसमें से एक बड़ी चीज़ क्या है? कुरान के नकूश और हुरूफ और कुरान उठा लिया जाएगा, है ना। वो कुरान उठा लिया जाएगा। क्या मतलब? कुरान नहीं तो वीरानी, अब क़यामत, कुरान बाकी नहीं रहेगा तो अब दुनिया की भी ज़रूरत नहीं। दोस्तों, बस मैं बात ख़त्म करने से पहले फिर एक ताकीद के साथ कि ये मेहनत की जो चीज़ है, अगर किसी चीज़ पर मेहनत करनी है, किसी चीज़ को हासिल करना है, सीखना है, आइडियल और नमूना बनाना है तो कुरान है। सारे वादे, बशारतें, आबादियाँ, रहमतें, बरकतें, सब कुछ कुरान के साथ है। कुरान ज़िंदगियों में होगा। और मैंने शुरुआत जिस बात से की थी कि इसकी कोई लिमिट, कोई हदबंदी नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, बल्कि हदीस में इशारा तो ये दिया गया है कि जो बड़ी उम्र में जो सीख रहा है, पढ़ने में मशक्क़त आ रही है, अटक रहा है, तकलीफ हो रही, जाहिर है बड़ी उम्र वाले के लिए। हम नियत तय करें, हम कुरान को सीखेंगे इंशाअल्लाह। कुरान ही हमारा आइडियल और नमूना है। कुरान और सीरत, कुरान और सुन्नत, कुरान आबाद होगा, कुरान को सीखेंगे, कुरान की अज़मत दिल में होगी तो ज़्यादा दूर जाने की नहीं है। सैयद फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में आपके सामने मैंने बताई, माजी करीब ही में, अभी करीब के भूतकाल के अंदर देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े बड़े जो लोग कुरान की ज़िंदगियों में, अल्लाह ने उन्हें कुरान, जिनकी ज़िंदगियों में कुरान है, अल्लाह ने उन्हें कुरान की बरकत से हुकूमत अता की, इज़्ज़त अता की, बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतों को उनके कदमों में लाकर रख दिया। आज की जो हालात हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, आज हमारी जो जिल्लत और रुसवाई हैं, दुनिया हम पर हंस रही है, हमारी मजलूमियत का, बेबसी और कमज़ोरी का जो मजाक बन रहा है, बड़ी वजह है हमने ज़ाहिरी असबाब पर तो बहुत मेहनत की, बहुत गौर व खोज किया, बहुत फिक्रें की, बहुत तदब्बुर तलाश किया। हमारी सियासी पार्टी होनी चाहिए, हमारी कोई तंजीम होनी चाहिए, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, हमारा अपना कोई स्टेज होना चाहिए, हमारी स्कूलें हों, हमारी हॉस्पिटलें हों, हमारी ये दुनिया भर के जो रिफाई इदारे और अंजुमनें हों। बेशक इनकी भी ज़रूरत है, उनकी अहमियत से इनकार नहीं, लेकिन जितनी अहमियत इसकी हम महसूस कर रहे हैं ज़ाहिरी असबाब की, ज़ाहिरी हालात की, ज़ाहिरी वसाइल की, इतनी ज़्यादा मेहनत और कोशिश इस बात की भी होनी चाहिए कि कुरान से हमारा जो रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल ने जो जोड़ा था और जो फजीलतें और बशारतें हमको बतलाई है कुरान के ऊपर, क्या इतना रिश्ता हमारा मजबूत है या कमी हो, कोताही आ गई? कुरान पढ़ेंगे तो कुरान की अजमत आएगी, हदीस पढ़ेंगे तो हदीस की अजमत आएगी, सीरत पढ़ेंगे तो सीरत की अजमत आएगी। हमको अगर कुरान ही नहीं पता है, सीरत ही नहीं पता है, तो उसकी अजमत कैसे आएगी? किसी भी चीज की अजमत अपने दिलों में पैदा करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी चीज की अजमत को अपने दिल में पैदा करे, उसकी सबसे पहले तो उसको पढ़ना जरूरी है। आज बदकिस्मती से सीरत के ऊपर, अल्लाह के रसूल की सुन्नत के ऊपर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी के ऊपर, आपके पाकीज़ा कैरेक्टर के ऊपर जो हमले होते हैं, कुरान पर जो हमले हो रहे हैं, सुन्नतों पर जो हमले हो रहे हैं, शरीयत पर जो हमले हो रहे हैं, और हम उन हमलों के सामने जिस एहसास कमतरी का शिकार हैं,
आपने देखा पिछले 6-8 साल महीने के 6-8 महीने साल भर में नाउज़ुबिल्लाह कितनी गुस्ताखियां और कितनी तौहीन कुरान की, हदीस की, सुन्नतों की, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत की, आपकी सीरत की, आपके अखलाक की, आपके पाकीज़ा कैरेक्टर की, और उसके सामने हमारी बेबसी, हमारी कमज़ोरी, हमारी एहसास कमतरी, हमारी ज़िल्लत और रुसवाई, क्या वजह है? बड़ी वजह ये कि हमने सीरत और कुरान को सीखा और पढ़ाई नहीं है। दोस्तों, बहुत डरने की चीज़ें दुनिया वालों की गंदी कमेंटों के सामने अगर हमारे दिलों में ज़रा बराबर भी कुरान और सीरत को लेकर, कुरान और हदीस को लेकर, अल्लाह और उसके रसूल को लेकर ज़रा बराबर भी वसवसा आ रहा है, जो अजमत, जो मोहब्बत, जो अकीदत अल्लाह और उसके रसूल की हमारे दिलों में है और होनी चाहिए, उसमें ज़रा बराबर भी वसवसा, कमी, कोताही आ रही है तो डरने की बात है कि हमारा ईमान जा रहा है। आज जिस एहसास कमतरी में हम मुबतला है और जो हमले पर हमले अल्लाह और उसके रसूल पर हो रहे हैं, जो हमले पर हमले कुरान और हदीस पर हो रहे हैं, उसके सामने हमारी लाचारी, बेबसी, मजबूरी वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमने कुरान और सुन्नत को पढ़ा नहीं, कुरान और सीरत को पढ़ा नहीं। हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की, कुरान और सुन्नत की, कुरान और सीरत की अजमत बढ़े, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको सीखें और पढ़ें। सीखेंगे, पढ़ेंगे तो अजमतें पैदा होंगी। जितने बोल ज़्यादा बोलेंगे, जितना कुरान ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना कुरान ज़्यादा सीखेंगे, जितना सीरत को ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पढ़ेंगे, इतनी अजमत पैदा होगी। और उससे फ़ायदा क्या होगा? अजमत पैदा होगी तो इताअत की तौफीक होगी, और इताअत की तौफीक होगी, उसके साथ साथ ये जो हालात हैं, ये हालात हेज वालों होंगे। हालात की वजह से जो हम बुज़दिली और मायूसी का और एहसास कमतरी का शिकार है, अगर कुरान की अजमत दिल में आ गई, हदीस की अजमत, सीरत की अजमत दिल में आ गई, अल्लाह और उसके रसूल की अजमत दिल में आ गई, तो फिर हालात से भी कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी, हालात से भी कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी। मैं एक छोटा सा वाक़या कहकर बात इंशाअल्लाह ख़त्म कर दूंगा। हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी, अशरा मुबशरा में से हैं, जिन खुश नसीब लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नती होने का सर्टिफिकेट दिया, उनमें से हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ। इसी तरह हज़रत अब साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उन्हीं लोगों में से जिनको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नती होने का सर्टिफिकेट दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार थे, मामू कहते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपने रिश्ते में मामू लगते थे। और कितना बड़ा मकाम किताबों में है, हदीस की किताबों में है, गालिबन बुखारी शरीफ में भी ये रिवायतें मौजूद हैं। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ये फरमाते हैं कि सहाबाए किराम में, बल्कि तमाम इंसानों में, हदीस में ये कि सहाबाए किराम में, और मैं ये कह रहा हूँ कि सहाबाए किराम से बढ़कर, जब सहाबा में नहीं तो बाकी लोगों में भी नहीं, क़यामत तक किसी शख्स के लिए अल्लाह के रसूल ने ये कहा हो कि मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो, सिर्फ फजीलत किसकी है? खुसूसियत साद इब्न अबी वक़्क़ास की। रावी फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के दिन साद इब्न अबी वक़्क़ास को अपने हाथ से तीर दे रहे थे और कहते जा रहे थे, इरमी या साद फिदा का अबी व उम्मी, साद तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। बड़ी बात है ना। हमारी अपनी ज़बानों पर क्या होता है और क्या होना चाहिए कि हमारे माँ बाप अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो। कहते ना या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। बड़ी सादत की चीज़ है हमारे माँ बाप अल्लाह के हबीब पर कुर्बान हो जाए। लेकिन यहाँ देखिए अल्लाह के हबीब साद को ये कह रहे हैं, साद इरमी फिदा का अबी व उम्मी, के साथ तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाए। कितनी बड़ी बात कि किसी को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। इनका एक वाक़या कहकर मैं बात खत्म कर देता हूँ। मक्की ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने शहब अबी तालिब में, आपने सुन रखा है वाक़या, पढ़ रखा है, पढ़ा होगा, तालीम में भी सुना होगा, फ़ज़ाइल अमल में भी। मक्की ज़िंदगी में 3 साल के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रिश्तेदारों को, ख़ानदान वालों को, सहाबाए किराम को, जो नए मुसलमान हुए थे,
या जो आपके महबूब थे, जो आपके मुआविन थे, उन लोगों को एक घाटी में नजरबंद कर दिया था। उनमें सहाबा किराम के साथ ये साद इब्न अबी वक्कास भी थे। अपना वाक़या एक रात का बतलाते हैं। एक रात, अंधेरी रात में मैं क़ज़ाए हाजत के लिए इस्तिंजा के लिए उतरा, इस्तिंजा के लिए उठा। रात की अंधेरी है, तारीकी है, क़ज़ाए हाजत के लिए इस्तिंजा के लिए मैं बैठा। जब मैं इस्तिंजा कर रहा था तो पानी के गिरने की वजह से किसी चीज़ के बजने की आवाज़ आई। जैसे बारिश में पत्थरों पर बारिश गिरे तो आवाज़, पत्थर आवाज़ करता है ना, बारिश के अंदर पत्थर आवाज़ करता है, पत्थर पर बारिश हो तो मैं जब इस्तिंजे के लिए बैठा और जब पानी बहाया तो किसी चीज़ ने आवाज़ की, बजने लगी कोई चीज़। कहते मैंने चांद की रोशनी में उस चीज़ को देखा, चेक किया तो मुर्दार जानवर की खाल थी। क्या था वो? मुर्दार जानवर की सूखी हुई खाल थी। अब अंदाजा लगाइए, इतने दिनों का फाका और भूख। कहते मैंने उसको गनीमत समझा, उसको दिमागत दी, पाक किया और पीस कर उसी को पानी के साथ निकल गया। पीस कर कितनी तकलीफें, कितनी भूख, कितनी आजमाइश, और सोच सकते हैं कि कितने दिनों का फाका होगा कि गरीब आदमी बेचारा ये मिल गया, उसी को खा लिया। लेकिन सारी मुसीबतें किसकी निस्बत पर आ रही थी? अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत पर। तो ये मुसीबत भी नहीं रही। साहबा कहते हैं अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखकर कहते थे, या रसूल अल्लाह आपका चेहरा अनवर देख लिया, भूख खत्म हो गई, तकलीफें खत्म हो गई। एक औरत जिसको ये खबर दी जा रही है कि उहद में तेरा बाप शहीद हो गया, पूछ रही है अल्लाह के हबीब हयात है या नहीं। फिर खबर दी जा रही है तेरा बेटा शहीद हो गया, पूछ रही है अल्लाह के हबीब हयात है कि नहीं, आपकी क्या खबर है। जब देखे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर को देखा कि आप हयात है और सही सलामत है, फरमाया आपको होते हुए अब सारी मुसीबतें हैं। दोस्तों, आज जो परेशानियां हैं, आफतें हैं, मुसीबतें हैं, आजमाइशें, जुल्म है, जिल्लत है, तासुब है, तशद्दुद है, नफरत है, ये सारे चीज़ों का इलाज भी है ये कि रिश्ता हमारा कुरान और हदीस से, अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत हो गया तो मुसीबत नहीं रहेगी। तो आज हम नियत करें कि हम कुरान को और हदीस को, सुन्नतों को और सीरत को हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ज़िंदगी में उतारेंगे और इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसीबतों को दूर करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे यहाँ जमाओं ने कबूल फरमाए। हज़रत मुफ्ती साहब की मेहनतों को, कोशिशों को, काविशों को कबूल फरमाए। जैसे बड़ी उम्र में सीखने में मुशक्क़त होती है, तकलीफ़ होती है, पढ़ने में तकलीफ़ होती है, इतनी ही मशक्क़त और सीखने में हमारा तजुर्बा ये है कि इतनी ही मशक्क़त और तकलीफ़ सिखाने में भी होती है। सीखने में जितना जोहद होता है, जितना सफल करना पड़ता है, जितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, सिखाने में भी इतनी बल्कि उससे ज़्यादा होती है। मैं मुफ्ती साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मुस्तकिल एक इदारे का फैज़, अपना फैज़, इतना बड़ा इदारा, वहाँ पर भी पढ़ाना और साथ साथ में दूसरे औकात निकाल कर नौजवानों पर, बच्चों पर, बहनों पर मेहनत करना, घर से इनकी मेहनतें कर रही। अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान और सुन्नत के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान की बरकत से, सुन्नतों की बरकत से, सीरत की बरकत से अल्लाह ताला मुसीबतों और परेशानियों से नजात अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।